office hours, I've tried to make sure that the office hours are in the timings when you are available. In fact, both the section B and section F, both are available. And maybe on Friday, the first office hour, that is on 8:30 a.m. In this, maybe you have a lab. Maybe I'm not sure, but I guess this is the time when one of the two sections is busy. But apart from that, all the four office hours are the ones in which both the sections are available. In fact, these slots, these are five slots, and each slot is of 1.5 hours. Okay, so you can come to my office and ask any question related to DS course and maybe in general towards your studies. In any case, I would be available during these times in my office. Um, I would not be available after these hours as I would be busy in my research work. So I would not be available after 1 o'clock. I would be in the office, maybe in a lab, but I would not be available to discuss anything related to data structures after 1 o'clock. Okay. I guess this is a mistake that the academics office has done. There shouldn't be AM or PM here. In any case, 1300 hours and 1420 hours. You have to write it like this, then you do not have to write AM and PM. This is the template that we were given, and I didn't see that there are AM and PM written over there. So, okay, so there are 1.5 hours in which you can discuss. If you are available, maybe, in fact, there is no other time slot left where I will be available to discuss anything. I have classes that I study and I have classes that I take lectures for. I teach you, and then I have 5 office hours and 2 slots for the FIB meeting. So this is the entire schedule that you should know about my availability. I would not be available on Saturday, as the university has given a policy that only those teachers would be available on Saturday who have to take a class on Saturday, and they can take any other day off during the week. So for teachers and in fact for students as well, it's still a 5 working days week. Okay, the sixth day is actually for those people who have a day off in between the week. So these are my office hours. Please note down and try to follow these hours if you want to discuss anything. Okay, ji. Hamad, it's okay if your net is not stable. You can still listen to the recording, watch the recording, and uh, learn the material that we discuss here. But this is not your responsibility to uh, go through all the recordings and prepare for the announced quiz that we have. Okay. We'll have our quiz, the announced quiz, on the next Tuesday. I'll start a new topic today after first part of the lecture, maybe after 30 minutes, and that is complexity analysis. This topic would be included uh, in the quiz on next Tuesday. Okay, ji. This is the second announcement that I wanted to make, and now let's start our lecture right from the slide where we left off. Okay, ji. So, in fact, I'll go into some revision as well. We started discussing multi-dimensional arrays, and if you have any question, you may ask. Otherwise, I'll just repeat the content and then continue with the same topic. And after about 30 minutes, we'll start our new topic, complexity analysis. Okay, so we discussed the concept of multi-dimensional arrays. In fact, the multi-dimensional arrays is not an ADT. Okay, just keep in mind that multi-dimensional array is just an extension of an array ADT, which is a 1D array. This multi-dimensional array is just a concept that different languages have implemented, and it has nothing to do with the change in the ADT of an array. Okay, ji? So it's still a 1D array, just the usage is different, or the syntax is available in different languages to help you write maybe a readable code.
Otherwise, there is no significance of having multiple dimensional arrays in the course of data structures, right? In this course, we'll in fact see these multidimensional arrays again as a 1D array or as an enhancement to 1D array. But all the analysis and all the algorithms that we discuss on the arrays would be treating this multidimensional array again as a 1D array, and we'll try to make the formulas, mathematical formulas for the analysis in terms of the layout of the memory or layout of the RAM for this data structure. Okay, so just an example how a multi-dimensional array is required. For example, here we have multiple students, and each student has 4 tests. Right, so here we have 1, 2, 3 up till n. Now this n is very important here, that we are actually mentioning here that the input can be of any size. This is very important in the data structures course, that we generalize our size of the data. Okay. But the size in this specific example, the number of tests definitely they are not infinite, or they are not very big number. Okay. This number is not very big. So, but on the other hand, the students number, the count of the students or the registrations, admission number, admission count of students in a university, it may vary, and it can be a very huge number as well. So in our university, maybe if we just talk about a department, then it's maybe 300 or 400 students. But if we talk about the entire batch, it may be around 1,000. And if you talk about the entire population that is currently enrolled in the university, that would be quite a few thousands. And for example, if we discuss about the entire alumni body as well, for example, we have a scenario where we discuss that um, how a data structure course is run in FAST University. In that scenario, we'll want to compare the scores of first 4 tests of all the students that have graduated from FAST ever since, right? So that would be a very huge number. Uh, so this total number of students can be n, and n can grow, or it can be a very small number as well. For just one section, it can be a 30. The value of n can be 30. So, but in any case, we'll generalize this value. Okay? This is very important in data structure. So the scenario is that we have a class of n students, and we have 4 tests. We want to record the performance of those students in 4 different tests. Okay, the performance is recorded in the numeric values, in fact, in the real numbers. So these are all the double values. So we have n cross 4 double values. Okay, this is an example of a 2D array that is very readable. We can very clearly tell that this specific value 70 is the score of third student in his or her third test. Okay, so this is a readable or a very presentable way of displaying a two-dimensional data. Okay, this is of course C++ provide us the syntax to declare to the arrays. Very simple syntax. We have already studied in the previous 2 courses, so I don't think I need to go into the details or revise it again. Maybe I can revise this initialization step, where the row index, the size of row, is missing. Can anybody explain what is the logical reason behind skipping this size of the rows, number of the rows? We have still mentioned the size of each row, that is 4 elements in each row, but we have skipped the number of rows here in this array of score table, right? There's a very logical reason. C++ provides us this syntax. So why is this syntax even available to us? Anybody? You can even unmute yourself and answer. Osama Umar, can you answer this? Why is the first index empty in this specific example when we are initializing an array of double values?
Daniel says, ठीक है, we have initialized the array so it automatically knows how many rows there will be. ठीक है जी. तो of course ये इसीलिए है कि we have this initializer list on the right hand side, and if we skip this index, this the value of the number of rows, then what the compiler would do is कि given मतलब let's change this example कि if we do not have these curly braces around these three values 0.5, 0.6, 0.3, and then again around this second batch of three values. If we remove these inner braces, okay, we just keep the outer braces, this one that starts the initializer list and the one that ends the initializer list. If we just keep these this pair of braces and remove all the inner braces, then there would be just six values in separated by commas, right? 0.5, 0.6, 0.3, 0.6, 0.3, 0.8. These six values would be written in one set of braces, one pair of braces, and separated by commas. So this could be a way that we provide the values of this. तो क्या होगा इसमें कि compiler would try to fit these value into the array of this type. तो यहाँ पे अगर देखें, we have mentioned that each row contains 4 elements. This information is more than enough for the compiler to know कि पहली चार वैल्यू 0.5, 0.6, 0.3 और उसके बाद 0.6, ये चार वैल्यू पहली रो में आ जाएंगी. उसके बाद जो वैल्यूज बची हैं वो हैं 2. तो इट नीड्स अनदर रो. कंपाइलर ऑटोमेटिकली नोज कि दिस इंडेक्स वुड बी 2, कि मुझे 2 रोज चाहिए अगर मुझे हर रो में 4 वैल्यू स्टोर करनी है, और टोटल वैल्यूज जो इनिशियलाइजर लिस्ट में दोज आर 6 वैल्यूज. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जब ये इनर ब्रेसेस करली ब्रैकेट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है उसमें 3 वैल्यूज हैं, और क्योंकि सिंटेक्स में हमने लिखा है कि 4 होनी चाहिए, तो चौथी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि डबल की डिफॉल्ट वैल्यू है 0.0. तो 0.0 से इनिशियलाइज हुई है चौथी वैल्यू. तो फर्स्ट रो में 0.5, 0.6, 0.3 और 0.0. यहाँ पे क्योंकि हमने ब्रैकेट्स लगा दी, इसके अराउंड ब्रेसेस लगाती हैं, ये जो करली ब्रेसेस हैं, तो कंपाइलर को बता दें कि दिस इज द लिस्ट फॉर फर्स्ट रो. उसके बाद जब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो के लिए भी हमने 3 वैल्यूज प्रोवाइड की. हम सेकंड रो में 4 भी प्रोवाइड कर सकते थे, 2 भी प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन कंपाइलर फिर उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता कि अगर उसे जीरोज अपेंड करने हैं या नहीं करने हैं. और अगर हम ज़्यादा वैल्यूज देते तो ऑफकोर्स वो सिंटेक्स एरर है. ठीक हो गया जी. तो अगर ये 2D की जगह 3D एरे होती तो तब भी हम फर्स्ट डायमेंशन को स्किप कर सकते थे, बाकी दोनों डायमेंशन हमें देनी होती. यानी कि 3D एरे में क्या होता है कि वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ अ सर्टेन डायमेंशन में भी. हम कह सकते हैं जी कि जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है ना स्कोर टेबल, हम कहते हैं कि 2x4 का ये मैट्रिक्स है ना. तो जब हम 3D एरे बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस मैट्रिक्स टाइप की हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए. उसमें भी हम ये कर सकते थे कि सेकंड और थर्ड डायमेंशन तो बता देते कि मैट्रिक्स कितने साइज का होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उसके बाद हम ये स्किप कर देते कि कितने मैट्रिसेस चाहिए. और जब हम इनिशियलाइजर इसमें बहुत सारी वैल्यूज देते थे तो कंपाइलर खुद ही देख लेता कि 2/4 का मैट्रिक्स है तो 8 वैल्यूज एक मैट्रिक्स में जाएगी. और अगर मैंने 20 वैल्यूज प्रोवाइड की हुई हैं तो वो दूसरी 8 वैल्यूज दूसरे मैट्रिक्स में डालेगा और रिमेनिंग 4 वैल्यूज के साथ तीसरा मैट्रिक्स इनिशियलाइज करेगा और उसमें बाकी वैल्यूज को जीरो कर देगा. ठीक है. तो कंपाइलर को बड़ा क्लियरली पता है कि जितनी वैल्यूज प्रोवाइडेड है उन्हें किस तरीके से फिट इन करना है अगर हमें साइज ऑफ 1 एलिमेंट पता हो. तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो 1 एलिमेंट है, जिस टाइप के हमने मल्टीपल एलिमेंट बनाए होंगे 3D एरे. ठीक है. इस स्पेसिफिक एग्जांपल में 2D एरे है तो हमने एक रो बताई है 4 एलिमेंट्स की, और कितनी रोज होंगी ये नहीं बताया हुआ, तो वो हम इस डाटा में से कंपाइलर को बता सकते हैं. जी कोई क्वेश्चन है? किसी बच्चे ने माइक अनम्यूट किया था, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क. सर मैंने किया था. सर इसमें टाइम डिले नहीं आ सकता अगर अगर डायमेंशंस बढ़ाते किस तरह का टाइम डिले? ऐसे कंपाइलर के लिए. नहीं, कंपाइलर ने तो सिंपल एक कैलकुलेशन करनी है कितनी साइज की मेमोरी चाहिए उसको ना. इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें बड़ा आसान है समझना अगर आप इसको एडीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें.
तो मैंने शुरू में बड़ा क्लियरली बता दिया था कि ये 2D एरे कुछ नहीं होती जी, ये सारे बस बहाने ही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में, सब कुछ क्या होता है, एडीटी किस चीज की है। सर वो क्या वो कहते डिजाइन और अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट इसी बात से किया था ना कि एडीटी 1D एरे की है, 2D एरे ऊपर 3D एरे 4D एरे, जो मर्जी जितनी मर्जी डायमेंशन डाल दें, ये हमारा लॉजिकल व्यू है। बैकएंड तो सब 1D है ना। सर ये हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब आप जो मर्जी कह लें, कंपाइलर के लिए क्या मसला, कंपाइलर देखेगा 20 वैल्यूज है, ठीक है। अगर 20 वैल्यूज है तो उसने एरे 20 एलिमेंट्स की बना दी। बाकी तो कंपाइलर का काम है ना कि वो 20 वैल्यू जो स्टोर होगी है रैम के अंदर, उनको कैसे प्रोसेस करता है, उसमें 4-4 की डिवीजन डालते हैं या 8-8 की डिवीजन डालते सही हैं, ठीक। ठीक है। तो 2D एरे या 3D एरे इज जस्ट अ पार्टीशन ऑफ 1D एरे, कि 1D एरे में हमने एलिमेंट्स को कैसे पार्टीशन करना है, ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर में वही लंबी एग्जांपल डिस्कस की थी कि हम पार्टीशन कर सकते हैं एरे के अंदर भी एलिमेंट्स को। तो ये 2D एरे और 3D एरेज भी तो उसी की एग्जांपल है ना, कि 1D एरे को पार्टीशन कर दें और एक ब्लॉक को मे बी एक रो कह दें, फिर 3D एरे कहते नहीं एक ब्लॉक को एक मैट्रिक्स कह दें, ठीक है। और 4D एरे कहते नहीं एक पूरी की पूरी 3D स्पेस को एक एलिमेंट कह दें, और जो बाकी है मैं उसके साथ बाकी एलिमेंट्स देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये पार्टीशन से मान रही है। यहाँ दो पार्टीशन बनाने का तरीका होता है कि वी कैन स्किप दी साइज ऑफ वो, बिकॉज कि हमारे पास इनिशियलाइजर लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली पता है कितने हैं। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, उनमें ये जो 4 है ये बता रहा है कि हर पार्टीशन का साइज कितना है। जब हर पार्टीशन का साइज 4 एलिमेंट्स का है तो कंपाइलर आराम से उनको डिवाइड कर सकते हैं। प्लस बाकी ये जो कम्प्लेक्सिटीज है ये तो लैंग्वेजेस में है ना, सी प्लस प्लस में ये सिंटेक्स है, पाइथन में बहुत ही इससे भी आसान सिंटेक्स है। पाइथन कहता है जी कि आप स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू और इंक्रीमेंट बता दें तो मैं पूरी की पूरी अरे पॉपुलेट कर दूंगा, चाहे इसमें जितने मर्जी एलिमेंट हो, ठीक है। तो लैंग्वेजेस इस तरह की आसानियां देती हैं क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, वो प्रोग्रामर कोडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पे भी आप कहते हैं ना कि कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस या डाटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी होती, वो बनी होती है कि कौन सा सिंटेक्स आसान हो सकता है किसी प्रोग्रामर के लिए और कौन सा सिंटेक्स ज़्यादा यूजेबल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जब 2D और 3D एरे डिस्कस करते हैं हम बस सी प्लस प्लस की एफिशिएंसियाँ बात कर रहे हैं। मतलब वो मतलब डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उसको सिर्फ ये दिखाना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि आप देखें कि बैक एंड पे फिर 1D एरे है। जब भी आप एनालिसिस करेंगे किसी भी डाटा स्ट्रक्चर का, चाहे वो 2D एरे में बनाओ चाहे वो 3D एरे में बनाओ, बाय द एंड ऑफ द डे हमने 1D एरे ही देखनी है, ठीक है। तो ये जो मैं डिस्कशन करूँगी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगी। अभी मैंने इसको बताने के बाद लेकर जाना है कि ये 1D एरे में असल में कैसे हम देखेंगे और उसके ऊपर एनालिसिस कैसे, ठीक है जी। तो आई थिंक आई मेड द पॉइंट है। तो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्लाइड के ऊपर वो है कि एलिमेंट स्टोर हुए हैं रो बाय रो। अब ये जो रो बाय रो लिखा हुआ है कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, ठीक है। ये सी प्लस प्लस में रो बाय रो है, लेकिन किसी और लैंग्वेज में कोई डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन रो बाय रो से हमें मतलब समझ आ जाता है कि डाटा रैम में कैसे, पहले 0.5.6.3 पढ़ा हो गया, पहले 0.5.6.6.3 पढ़ा हो गया, अपने एरो को फॉलो किए माउस को, 0.5.6.6.3.3.8 रैम में ये सीक्वेंस भी हो सकता था। लेकिन रो बाय रो का मतलब है कि सीक्वेंस होगा 0.5.6.3 0.6.3 इनफैक्ट बीच में जीरो भी आएगा, लेकिन मतलब रो बाय रो पड़ा होगा, या दूसरा वे कॉलम बाय कॉलम भी हो सकता है, जिसको हम अभी 2-4 स्लाइड्स के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स मूव। तो हम जो 2D एरे डिक्लेयर कर लेते हैं उसको प्रोसेसिंग करने के लिए हमें पता है कि इंडेक्स बताना पड़ता है 2D, मतलब दोनों डायमेंशन बतानी पड़ती है। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो हमने रो नंबर 2 यानी कि जो उसका इंडेक्स 2 है और कॉलम नंबर 1, तो जीरो से अगर इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं तो ये इंडेक्स 2 पे रो नंबर 3 पड़ी हुई है और उसका इंडेक्स 1 पे सेकेंड एलिमेंट पड़ा, तो ये जो 0.7 है इसकी बात हो रही है। जब इससे आगे चलने की वैल्यू रीड करनी है तो ये 0 ऑफ 3, रो नंबर 0 का इंडेक्स नंबर 3, ये वाला पॉइंट बनता है जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वैल्यूज आर रेड एंड रिटर्न, जो कि मेरा ख्याल रिवाइज करने की भी जरूरत है। तो यहाँ से आगे चलते हैं हायर डायमेंशनल एरे। तो हायर डायमेंशनल यानी कि 2D से भी जब ज़्यादा एरेज की बात करते हैं तो ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था आई गेस, कि वी कैन मतलब यहाँ पे एग्जांपल टाइप डेफ की भी दी हुई है। स्पेसिफिकली स्लाइड के ऊपर टाइप डेफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करें, लेकिन टाइप डेफ के थ्रू कॉन्सेप्ट बड़ा इजीली समझ आता है कि जो हमारे पास 2D एरे या 3D एरे या 4D एरेज होती हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज 1D एरे के ऊपर कैसे मैप होती
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, टाइप डेफ का मतलब ये होता है कि मैं एक नई टाइप डिफाइन करने लगा हूँ, या एलियस या एक नया नाम डिफाइन करने लगा हूँ किसी एक चीज़ का। तो जब टाइप डेफ का स्पेसिफिकली वर्ड यूज होता है, आप डिफाइन खाली भी यूज कर सकते थे हैश डिफाइन करके, लेकिन यहाँ पे जब टाइप डेफ का जिक्र है तो ये क्या ये रहा है, इसका स्पेसिफिक मतलब है कि इस कीवर्ड के फौरन बाद जो चीज़ लिखी है, दैट इज अ ऑलरेडी अवेलेबल टाइप। ठीक है, एक टाइप जो सी प्लस प्लस की ऑलरेडी अवेलेबल टाइप है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। इस टाइप डेफ डेफ के बाद जो पहला कीवर्ड आएगा वो ये बताएगा, और जो सेकंड कीवर्ड आएगा वो उसका न्यू नेम होगा, उस टाइप का न्यू नेम होगा। ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिकली टाइप्स की, डाटा टाइप्स की बात हो रही है। तो अगर आप देखें कि इस लाइन के ऊपर जो टाइप लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, कोई बच्चा बता सकता है? चलिए जी, अच्छा जी, आंसर आना शुरू हुआ जी। काशिफ ने कहा कि दिस इज डबल, जबकि हाजिरा ने कहा कि 3D एरे। जी हाजिर, तो हाजिरा आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। अम, काशिफ न्याजी आपने दोबारा कहा कि डबल 3D एरे। ठीक है जी, अब आप ठीक कह रहे हैं, डबल 3D एरे। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये बड़ी स्टैटिक साइज की एरे है, सिर्फ 3D जनरलाइज नहीं है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली एक स्टैटिकली साइज की एरे है, स्टैटिकली डिक्लेयर्ड साइज, यानी कि ये एरे है डबल की 10 क्रॉस 30 क्रॉस 4। ठीक है, आप जरा उस सिनेरियो पे जाए वापस, जब आप किसी फंक्शन में एक एरे को पास करते हैं तो कंपाइलर आपका वो जो एरे का नाम होता है उसकी टाइप क्या बताता है, वो एग्जैक्टली वो जो स्टैटिकली डिक्लेयर्ड एरे होती है उसकी साइज भी बताता है, क्योंकि डायनेमिकली के जो पॉइंटर आ जाएगा ना, स्टैटिकली डिक्लेयर्ड एरे में आप साइज बताते हैं ना, एग्जैक्टली 2 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 2, जैसे भी आपने करके बताना है। तो जब आप फंक्शन में पास करते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई मिसमैच का एरर आ जाए, आपने जो वेरिएबल पास किया है वो उस टाइप का नहीं था जिस टाइप का आपने एक्सपेक्ट किया फंक्शन के पैरामीटर में, तो कंपाइलर एरर देता है टाइप मिसमैच का, और जो टाइप दिखाता है एग्जैक्टली ये दिखाता है कि डबल, और उसके बाद ब्रैकेट्स लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर उसके स्टैटिक साइज भी लिखता है। तो यहाँ पे अगर आप कंपाइलर से साइज पूछेंगे तो कंपाइलर इस टाइप का साइज बताएगा, डबल 10 क्रॉस 30 क्रॉस 4। ठीक है जी, तो दिस इज द टाइप जिसको मैं टाइप डेफ यानी कि जिसको मैं रीनेम कर रहा हूँ, और जो नया नाम है वो इसका ये बोल्ड में लिखे 3 डिम एरे। यानी कि जब भी मैं 3 डिम एरे लिखूं तो इसका मतलब ये है कि कंपाइलर हैज टू अंडरस्टैंड कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ 10 क्रॉस 30 क्रॉस 4 साइज डबल एलिमेंट्स एरे। ठीक है जी, तो ये ग्रेड बुक जो है इसका साइज ये है डबल 10 क्रॉस 30 क्रॉस 4 की एरे। ठीक हो गया जी, तो ये एक डिक्लेरेशन है। अब ये सिंटेक्स ध्यान में रखने आपने कि टाइप डेफ का सिंटेक्स होता है कि अगर मैं लिखूं टाइप डेफ स्मॉल, जो एक्चुअली डाटा टाइप है इंट, टाइप डेफ इंट, और उसके बाद मैं लिख दूं इंटीजर, टाइप डेफ इंट, और इंट के बाद लिख दूं स्पेस देके इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने कोड में जहां जहां पे इंटीजर लिखूंगा उसका मतलब है इंट। ठीक है, तो टाइप डेफ ये होता है कि किसी एग्जिस्टिंग टाइप को किसी न्यू नेम से आप बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है टाइप डेफ के अंदर। तो यहाँ पे हमने वो यूज किया टाइप डेफ वाला कॉन्सेप्ट, और हमने यहाँ पे डबल 10 क्रॉस 30 क्रॉस 4 की जो एरे है उसका नाम रख दिया 3 डिम एरे। अब हमने 3 डिम एरे का ऑब्जेक्ट बनाया ग्रेड बुक, तो हमारे पास ग्रेड बुक जो एरे बनी दैट इज अ डबल एरे ऑफ साइज 10 क्रॉस 30 क्रॉस 4, स्टैटिक साइज की एरे, ये डायनेमिकली डिक्लेयर्ड एरे। ठीक है जी, अब उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस ग्रेड बुक 4 बाई 2 बाई 3। तो सबको पता है कि जी एलिमेंट जो है ये फिफ्थ रो के, फिफ्थ मैट्रिक्स के, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के थर्ड स्टूडेंट के फोर्थ टेस्ट का रिजल्ट। ठीक है जी, अच्छा जी, फैज कह रहे हैं कि पुराना नाम चलेगा टाइप डेफ के बाद से। जी जी, पुराना नाम बिल्कुल चलेगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन नया नाम भी आप यूज कर सकते हैं। तो यूजुअली लोग इसको यूज करते हैं जब इन्होंने थोड़ा सा कोड को रीडेबल बनाना हो। ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इसका यूजेज मैंने आपको शायद लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो यूजेज ये था कि कभी कभी आपने लैंग्वेज तो C++ ही यूज़ की है, लेकिन उसके जो कंपाइलर हैं वो डिफरेंट वेंडर्स के आते हैं ना। अगर आपने G++ को यूज़ किया है और उसके मुकाबले में आपने VC को यूज़ किया, तो इन दोनों के अंदर कुछ
जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंपाइलर्स के अपने जो वेरिएबल्स हैं या सिंबल्स हैं, उनमें डिफरेंस हो सकता है। ऐसी एग्जांपल के तौर पे कि आपका ओएस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उसको जी प्लस प्लस, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एग्जांपल दे रहे हो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी दी थी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम है वो किसी वेरिएबल में स्टोर होता है, ताकि आप अगर अपने कोड में उसको यूज़ करना चाहें तो आपको पता हो कि मैं किस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड लिख रहा हूँ, उस वेरिएबल को कॉल करते हैं, उसको रीड कर लेते हैं। तो जी प्लस प्लस में मे भी उसका नाम ओ एस हो, ओ एस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको जब आप रीड करें तो आपको वैल्यू बता देगी कि ये आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ पे है या यूबंटू पे है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप जाते हैं फॉर एग्जांपल वीसी में, तो वीसी में इस वेरिएबल का नाम ओएस की जगह हो सकता है वर्जन हो, या ओएस वर्जन, ओ एस अंडरस्कोर वी ई आर, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। तो अब आपने करना ये है कि आपने तो कोड तो एक ही लिखना है ना, आपने ऐसा तो नहीं करना कि आपने वीसी पे चलाने के लिए दूसरा कोड लिखना है, जी प्लस प्लस पे चलाने के लिए कोई और कोड लिखना है, तो कोड तो आपने एक ही लिखना है। तो वहां पे आप ये कर सकते हैं कि टॉप पे आप लिख दें कि मैं ओएस को टाइप डेफ कर रहा हूँ ओ एस अंडरस्कोर वी ई आर से। तो उस केस में आपका सेम कोड, उसमें अब आगे हर जगह पे आप ओ एस वी ई आर ही लिखेंगे। तो अगर ओ एस वी ई आर के नाम से मतलब वो है, तो वो इशू नहीं होगा, आपका सारा कोड सिमिलर वे में चलता है, ठीक है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल जिसमें आप एक्चुअली इस टाइप डेफ को यूज कर सकते हैं उसके लिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पोर्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। लेकिन इन केस मैंने एक एग्जांपल से दी थी कि ये इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा चीज़ हो सकती है। मैं भी अभी डिस्कस करते हुए बीच में कुछ सिंटेक्स तरह का इशू हो, जो कि मुझे लग भी रहा है, लेकिन फिर भी ना किसी एग्जांपल से आपको आइडिया होगा कि हम फिर भी एक टाइप को एक वेरिएबल नेम जो एक जगह पे अवेलेबल है उसको किसी दूसरे वेरिएबल नेम से कॉल कर सकें, ताकि कोड में हमने एक ही वेरिएबल को यूज़ किया, बस टॉप पे टाइप डेफ कर दिया कि अगर दूसरे नाम से कोई वेरिएबल मौजूद है तो उसको भी हम हमेशा से पहले नाम से बुलाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज रीड करने का तरीका भी पता है। अब हम देखते हैं कि हम इसको इसके अंदर मजीद एक और कम्प्लेक्सिटी, अब हम उस स्टेप की तरफ जा रहे हैं जिसको मैं बता रहा था कि मैंने इस सारी मल्टी डायमेंशनल एरे को घुमा फिरा के आपको लेकर आना है वन डी एरे के ऊपर ना। तो वन डी एरे पे कैसे लेकर आएंगे, कंसिडर कि ये वही वाली एरे जो हमने 2 स्लाइड्स पहले बनाई थी, शायद यहाँ पे ना, स्कोर ऑफ 10 क्रॉस 4, ठीक है जी। तो 10 क्रॉस 4 की जो एरे हमने बनाई थी, ये वही एरे डिक्लेयर हुई है। तो अब हम इसको डिक्लेयर करने के एक और तरीका टाइप डेफ के थ्रू देखना चाह रहे हैं, ठीक है। टाइप डेफ की एग्जांपल तो सबने देख लिया ना। तो हम करते ये हैं कि इस एरे को, इसमें देखें रोज है ना, ये पहली रो में 4 एलिमेंट हैं, दूसरी रो में 4 एलिमेंट हैं, तो ये 4 एलिमेंट मिला के खुद भी तो एक एरे बनते हैं ना। तो लेट्स सी कि हाउ कैन वी ट्रीट दिस एरे और डिक्लेयर दिस एरे एज एन एरे ऑफ एरेज। अभी भी देखें तो देखने में वी हैव अ array of 4 elements, and then we have multiple copies of this array. We already have 10 arrays of, या 10 copies of an array of size 4, ऐसे बन रहा है ना। तो इसको जरा अगर कोड में देखें तो हम ये कहते हैं कि दिस इज द सिंटेक्स ऑफ टाइप डेफ। हमने टाइप डेफ में जब डबल रो ऑफ टेबल 4 लिखा तो उसका मतलब क्या बना, कौन बताएगा जी। नीचे जाता हूँ, सबसे आखिरी नाम मोहम्मद सलमान, मेरे पास सबसे आखिरी नाम मोहम्मद सलमान है। सलमान आप बताएंगे जी। ये जो काइंडली सिंटेक्स क्वेश्चन रिपीट कर दें। ये जो सिंटेक्स लिखे टाइप डेफ डबल रो ऑफ टेबल 4, इसका मतलब क्या बना। अच्छा, आपको अगर नहीं से समय आता, हाजिरा आप बता सकती हैं। सर इसका कि एक डेटा टाइप हम लोगों ने बनाया है तो डबल है और 4 1 भी अरे है 4। एग्जैक्टली हमने कह दिया जी कि हमने वन डी अरे ऑफ 4 डबल वैल्यूज जो है
इसका नाम रख दिया रो ऑफ टेबल। ठीक है जी, हमने 4 एलिमेंट्स ऑफ डबल टाइप यानी कि एक एरे बनती है, हमने इस एरे का नाम रख दिया रो ऑफ टेबल। ये डाटा टाइप है, ठीक है। अब रो ऑफ टेबल इज अ डाटा टाइप, अब मैं इस डाटा टाइप को यूज करूंगा। तो मैंने किया रो ऑफ टेबल। अब ये क्या चीज है, डबल एरे ऑफ 4 एलिमेंट्स, ठीक है, डबल एरे ऑफ 4 एलिमेंट्स। मैंने उसकी कितनी कॉपीज बना ली, 10 कॉपीज बन गई। तो देखिए ये जो ब्लू में सर्कल हुआ था उस जैसी 10 कॉपीज बन गई। अब एग्जैक्टली वही चीज नहीं बन गई जो ऊपर हमने स्कोर ऑफ 10 ऑफ 4 किया था। ठीक है, तो अगर आप देखें तो दिस इज अगेन अ 2D स्कोर ऑफ 10 का मतलब कि 10 कॉपीज हैं। 10 कॉपीज किस चीज की हैं, रो ऑफ टेबल की। रो ऑफ टेबल क्या है, 4 डबल वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास ये 10 कॉपीज बन गई 4 डबल वैल्यूज की। तो वी हैव 2D array, लेकिन नाउ वी कैन सी कि 2D array इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ 1D arrays। ठीक है, तो 1D arrays की कॉपीज बनी, कितनी बनी है हमने बता दी है, 10 कॉपीज। ठीक है जी, तो ये जेन में रखना है। अच्छा, ये पॉइंट आप जेन में रख लें कि हमने मल्टी डायमेंशनल एरे को भी डिक्लेयर किया इस तरीके से कि अब हर एलिमेंट जो है वो एक डाटा टाइप बन गया, मतलब एक रो जो है वो एक डाटा टाइप बन गई है। अब वो जो डाटा टाइप बनी, हमने उस डाटा टाइप के 10 एलिमेंट्स बना लिए, तो हमारे पास 10 रोज बन गई। ठीक है, तो हमने 2D एरे को भी इवेंचुअली 1D एरे के ऊपर मैप कर दिया। इसी तरह हम 3D एरे और 4D एरेज को भी मैप कर सकते हैं ऑफ कोर्स। मतलब अगर आप पीछे देखिए, जो पिछली एग्जांपल थी यहाँ पे हमने 3 डायमेंशनल एरे बनाई थी 3D एरे के नाम से। हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ग्रेड बुक, यानी कि इसका जो इंस्टेंस बनाया, जो वेरिएबल बनाया वो बनाया ग्रेड बुक। हम यहाँ पे ग्रेड बुक ऑफ 2 भी तो कर सकते थे, है ना। तो वो हमारे पास एरे बन जाती है, यानी कि 2 एलिमेंट्स की एरे बन जाती है, दोनों एलिमेंट्स होते हैं वो 3D होते हैं। ठीक है, तो हम 4D एरे को भी 1D एरे पे मैप कर सकते हैं, इसी तरह 5D एरे को भी 1D एरे पे मैप कर सकते हैं। और इन अदर वे हम 5D एरे को 1D एरे पे मैप करेंगे तो 1D एरे ऑफ 4D एरे बन जाएगी। फिर वो जो 4D एरे उसको मजीद मैप करें तो 1D एरे ऑफ 3D एरेज बन जाएगी। फिर 3D एरे को मैप करें तो 1D एरे ऑफ 2D एरेज बन जाएगी। और 2D एरे को हमने भी मैप करके देख लिया, 2D एरे इज अ 1D एरे ऑफ 1 डायमेंशनल एरेज। ठीक है जी, तो शायद आपका क्वेश्चन है कि दूसरी डिक्लेरेशन में डाटा कैसे एक्सेस करेंगे। अच्छा, डाटा वैसे एक्सेस करेंगे, डाटा एक्सेस करने में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो जब आप डाटा एक्सेस करेंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए कि स्कोर ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारी रोज हैं, ith रो, स्कोर ऑफ आई इज ith रो। ठीक है, तो जैसे आपने लिखे स्कोर ऑफ 2, तो स्कोर ऑफ 2 मींस इस एरे का सेकंड एलिमेंट, यानी कि सेकंड रो पे चले जाए। ठीक है, सेकंड रो के बाद आगे के एक्सेस करने वो है ऑफ 3। ठीक है जी, तो यानी कि उसका फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास एग्जैक्टली वही चीज़ आ जाती है, सिंटेक्स में भी चेंज नहीं आएगी, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो सी प्लस प्लस ने जो आपको देखने का तरीका दिखाया, इनफैक्ट सी प्लस प्लस ने तो आपको ऑप्शन दिया था, एग्जाम्पल हम लोगों ने इस तरह से बना ली लेक्चर स्लाइड्स में कि आपको 2D एरे को 1D एरे के तौर पर दिखा दिया। और देखिए तो सिंटेक्स अभी भी वही है कि आप स्कोर ऑफ आई ऑफ जे करके एक्सेस करेंगे। तो अगर आप इस डेफिनेशन को प्लेन वर्ड्स में कहें तो हमने रिकर्सिवली 2D एरे को 1D एरे की एक और एक्सटेंशन कह दिया, 3D एरे को 2D एरे की एक और एक्सटेंशन कह दिया, 4D एरे को 3D एरे की एक एक्सटेंशन कह दिया। ठीक है, तो रिकर्सिव डेफिनेशन हो गई कि 2D एरे इज एन एरे ऑफ 1D एरेज, 3D एरे इज एन एरे ऑफ 2D एरेज, 4D एरे इज एन एरे ऑफ 3D एरेज। ठीक है ना, जब मैंने मैट्रिक्स की बात की थी तो मैंने कहा था मैट्रिक्स इज अ 2D एरे, और जब हमने कह दिया कि 3D बनाया तो मैंने कहा था कि आप मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ मैट्रिक्स बना लेंगे ना, वही बात होगी ना, एन एरे ऑफ मैट्रिसेस इज अ 3D एरे। ये तो रिकर्सिव डेफिनेशन बन जाती है। तो यानी कि अगर आप इसको अनरोल कर लें इस रिकर्जन को, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सारा कुछ एरेज में बात हो रही थी, इवेंचुअली वो 1D एरे ही होती है बैकएंड पे, और कुछ नया नहीं होता इसमें। ठीक है, यानी कि इन प्लेन वर्ड्स हम डाटा स्ट्रक्चर्स में सारा का सारा एनालिसिस 1D एरे पे सीख सकते हैं और उसे एक्सटेंड कर सकते हैं 2D 3D 4D 5D एरेज के। सही हो गया जी, तो अब आ जाते हैं इस एरेज की आखिरी टॉपिक पे। अच्छा, बिफोर दैट वी हैव अ क्वेश्चन, कंपेयरिंग बोथ विल देयर बी एनी डिफरेंस फॉर मेमोरी लेआउट। साकिब यही तो बता रहा हूँ,
एग्जैक्टली यही तो बताया है कि 2D 3D 4D एरेज एक्चुअली 1D एरेज ही की तरह रैम में स्टोर होती है। तो जब हम डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स पढ़ेंगे तो डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में हमने जितनी मर्जी डायमेंशन की एरे हो हमने इसे देखना एज अ 1D एरे ही है। क्यों? क्योंकि मेमोरी में रैम में वो इसी तरह स्टोर होती है। कंटिगुअस स्पेस देखें, एडीटी में क्या था, कंटिगुअस स्पेस, ऐसे ही है ना। कंटिगुअस स्पेस अगर 2D को बनाए तो वो रो बाय रो हमने बताई थी कि पहले पहले रो के एलिमेंट, फिर दूसरी रो के एलिमेंट, फिर तीसरी रो के एलिमेंट, तो इवेंचुअली बनेगी मेमोरी के अंदर 1D एरे ही। तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारा एनालिसिस घूम फिर के फिर उसी 1D एरे रैम के अंदर उसी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर चला जाएगा जो हमने 1D के लिए पढ़ी थी। ठीक है, तो मेमोरी लेआउट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, एक्सेस पे या एक्सेस स्पीड पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। ठीक है, मैक्सिमम डिफरेंस पड़ा तो वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का पड़ा कि जो हम इस स्लाइड पे देखने लगे कि एड्रेस ट्रांसलेशन फिर कैसे होती है। जो पार्टीशनिंग हम कर चुके हैं अपने 1D एरे की, इस 1D एरे की पार्टीशनिंग को फिर कंपाइलर मतलब अनरोल कैसे करता है, जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि आपके पास प्रोसेसर के अंदर स्पेशल यूनिट्स बनी हुई है जिस काम को बहुत एफिशिएंटली कर देती है। ठीक है, तो इसके लिए कोई मसला नहीं। ठीक है जी, तो और हमारे पास हमने अगर स्कोर ऑफ 5 करना है तो ये एग्जांपल हुआ है जो कि आप लोग आराम से मुझे आंसर दे सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। आप लोगों ने मतलब ऊप का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसकी 6D एरे थी, याद 6D थी 5D थी, ठीक है 6D एरे थी जिसका आप लोगों ने सब ने बाजमाटी का आंसर दिया था। तो अगर आप 6D एरे को अनरोल कर सकते हैं तो ये तो 2D एरे, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। बल्कि बाएं हाथ की तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो आप तो जहन में एकदम से बता सकते हैं मतलब आसान सा आंसर होना चाहिए। तो चलें, लेट्स से कि मेरे पास जो एरे थी अभी 10 क्रॉस 4 की, उसमें मैंने 5 ऑफ 3 एलिमेंट को एक्सेस करना है, यानी कि 6th रो के 4th एलिमेंट को एक्सेस करना है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? गिवन द बेस एड्रेस इज 0x, यानी कि हेक्साडेसिमल वैल्यू है 12348। अब हेक्साडेसिमल को भी इग्नोर कर दें फॉर द टाइम बिंग, आप सिंपल इसकी कैलकुलेशन कोई बच्चा बता सके कि कैसे की जाएगी। हाउ वुड वी गो अबाउट दिस प्रॉब्लम कि वी रीच दिस स्पेसिफिक वैल्यू, स्कोर ऑफ 5 ऑफ 3। बेस एड्रेस पता है, स्टार्टिंग लोकेशन पता है। अच्छा जी, यानी कि मुझे खुद अगर देखना है तो आई वुड से कि ये आंसर देना चाहिए। तलाल, आप आंसर देंगे जरा, तलाल अहमद 727, कि ये एड्रेस कैसे बनेगा। काशिफ आपका हिंट ठीक है कि assuming that each double value is of 8 bytes। ठीक है, तो अब बताएंगे कैसे। फिलहाल आप पहले बताइए, बाकी लोग अभी थोड़ा सा होल्ड करें, लेट्स सी कि हम कैसे सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। चलो, फिलहाल अहमद लेफ्ट। अच्छा जी, चलिए इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा इन एनी केस। हसीब रमज़ान, हसीब आप बताएंगे। क्या हसीब भी लेफ्ट क्या होगी? अच्छा नहीं, सही है। दानियाल डिक्लेयर नहीं, डिक्लेरेशन तो मैंने ये राइट साइड पे नीचे बॉटम में लिखी हुई है ना, ये टाइप डेफ के थ्रू। मैं अब कह रहा हूँ जो टॉप पे स्कोर ऑफ 5 ऑफ 3 लिखा हुआ है, इसका इसको इस लोकेशन पे पहुंचेंगे कैसे ना, बेस एड्रेस हमें पता है। हसी मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे मैकेनिज्म चाहिए कि आप कैसे पहुंचेंगे उस एड्रेस पे। जैसे शेजिल ने लिखा है, अगर ये जो लिखा है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए शेजिल जरा आप एक्सप्लेन करें कि आपका आंसर कैसे बनाइए ना।
अच्छा जी, तलाल का आंसर था कि 5 × 4 × 8। आंसर नहीं चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए है कैलकुलेशन कैसे पहुंचे। उस्मान मलिक ने 6 × 4 × 8 लिखा, शेजिल ने 6 × 4 × 8 लिखा। अच्छा, 5 साइज ऑफ रो ऑफ टेबल तलाल। अच्छा, और साकिब ने लिखा स्कोर यानी कि 62 प्लस 5 × 8 प्लस 3 × 8। चलें जी, इवेंचुअली आप लोग दो डिफरेंट बातों पे बात चल पड़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 5 × समथिंग, कुछ लोग कह रहे हैं 6 × समथिंग। ठीक है जी, शेजिल ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, शेजिल ने कहा जी 2D एरे, 1D arrays will pile up in front of each other in the memory। ठीक हो गया। 1D of 4 डबल्स, ठीक है, बिल्कुल सही आइडिया। 4 डबल्स, 1D of 4 डबल्स हो गया तो 1D of 4 डबल्स। ठीक है, इसका साइज क्या हो गया? तो वी हैव टू मूव 4 × 6। 6 कहाँ से आया ये बताइए। 6 और 5 में कंफ्यूजन आ गई। ठीक है, मैं यही पूछ रहा हूँ शुरू से कि 6 और 5 में कंफ्यूजन क्यों आ गई। ठीक है, तो अब मैं जरा इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है जी, जी मैं ऑफसेट ही पूछ रहा हूँ कि आप कैसे पहुंचेंगे, ये किस जगह पे पड़ा होगा। एड्रेस तो तभी पता चलेगा जब आप बता सकेंगे कि कैसे मेमोरी में लेआउट है, उस मेमोरी में कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये एलिमेंट स्पेसिफिकली कहाँ पे होगा। ठीक है, तो अगर देखें तो जो आंसर है, चलिए मैं इसको साथ साथ थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ड्राइंग इसमें बहुत अच्छी होती नहीं है, लेकिन लेट मी ट्राई। ठीक है, तो हमने कहा जी कि हमारे पास ये जो स्कोर ऑफ डबल है, दिस इज लेआउट। इसका लेआउट ऐसे है कि वी हैव 4 एलिमेंट्स इन ईच रो, ऐसे ही है। सर 3 नहीं होंगे? अच्छा, क्वेश्चन शायद आपने पूछा था। ये देखिए, ये नीचे 4 लिखा हुआ है। हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 ओके एलिमेंट्स ओके। है ना हर रो के अंदर। जी जी तो सर। अगर हर रो में 4 एलिमेंट है, ये पहली रो हो गई, जीरो इंडेक्स, ये होगी दूसरी रो। अच्छा, हमने जाना कहाँ पे? हमने जाना है फिर इंडेक्स नंबर 5। तो इंडेक्स नंबर 5 होता है 6th रो, ऐसे ही है। इंडेक्स यस नंबर सर। 5 जब जीरो से इंडेक्स हो तो ये होती है यस जीरो। 6th। तो अगर 6th रो है तो हमें पहली 5 रोज स्किप करनी। तो 1 2 3 4 एंड हियर इट गोस। ये 5 रोज हमने स्किप करनी है। और अब मैं इसको कंप्लीट कर दूँ तो हर रो के अंदर हमारे पास है 4। ठीक हो गया जी, तो हमने हर रो में 4 एलिमेंट स्किप करने हैं और 5 रो स्किप करनी है। तो कितने एलिमेंट्स बने? 5 रोज, ईच रो ऑफ 4 एलिमेंट बिकम्स 5 × 4, 20 एलिमेंट्स। वेरी गुड, हमें मैथ्स आती है। यहाँ तक सब एग्री करते हैं कि हमें ये जो मैंने डब्बे बनाए ये 20 डब्बे हैं। यस सर। ठीक है जी, तो 20 डब्बे हमने स्किप कर दिए। जब 20 डब्बे स्किप कर दिए तो हम पहुंच गए छठी रो पे। ये हमारी रिक्वायर्ड रो है। तो मैंने अभी तक जो कैलकुलेशन की वो इस 5 के अराउंड की है। इस 5 का मतलब ये है कि मुझे कितने एलिमेंट स्किप करने। अभी मैंने 3 की प्रोसेसिंग नहीं की, मैंने अभी सिर्फ 5 की है। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि मुझे 5 रोज स्किप करनी है, यानी कि 5 रो में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हर रो में 4 एलिमेंट है, तो 5 × 4 20 एलिमेंट स्किप कर दिए। ठीक है, अब मैं आ गया इस रो के स्टार्ट। ये 6th यानी कि 5th एलिमेंट, 5th इंडेक्स। ठीक है, तो अच्छा, अगर आप इंडेक्स में देखें तो ये 0 इंडेक्स है। ठीक है, ये 1 इंडेक्स है। प्लीज बियर विद द राइटिंग जैसी बन रही है, क्योंकि आई डोंट हैव अ पेन राइट नाउ। तो मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसा लिखा जा रहा है। तो 0 1 2 3 4 को स्किप कर दिया। 5 पे हमने जाना। ठीक है, 5 इंडेक्स यहाँ पे देखिए, 5 इंडेक्स हमने इस पे जाना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी हमने 0 1 2 और उसके बाद 3 इंडेक्स ऐसे मेंशन किया। हमने 3 इंडेक्स यानी कि हमने यहाँ जाना। ठीक है जी, हमने इस बॉक्स पे जाना है। अब ये जिस बॉक्स पे हमने जाना है, तो उस पे जाने के लिए अभी हम पहुंचे हैं जब हमने 5 × 4 एलिमेंट स्किप कर लिए, तो हम इस एलिमेंट के स्टार्ट पे आ गए। नाउ वी नीड टू स्किप 3 मोर एलिमेंट्स, दिस 3, 0 1 2, ये 3 एलिमेंट और स्किप करने। तो बनेगा 5 × 4 प्लस कितने एलिमेंट्स और स्किप करने?
तो हमें टोटल जो एलिमेंट्स स्किप करने हैं दीज आर 23 एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें 23 एलिमेंट्स, तो हमने कहा जी अच्छा ये जो हमारे पास बेस एड्रेस है इससे 23 एलिमेंट्स आगे जाने, 23 एलिमेंट्स हैं, बाइट्स कितनी आगे चले गए। ठीक है, तो जो बाइट्स है वो हम करेंगे ये कि अगर 23 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट कितने साइज के, एज्यूमिंग फॉर एग्जांपल ये 4 बाइट्स का एलिमेंट है, ठीक है, डबल है 4 बाइट का भी हो सकता है, तो अगर ये 4 बाइट का एलिमेंट है, तो अगर ये 4 बाइट का एलिमेंट मतलब 8 मस्ट नहीं होता, ठीक है 4 भी हो सकता है, तो अगर ये 4 बाइट का एलिमेंट है तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 4, अब ये टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 4 करके देखें जरा क्या बनता है। So 92. ठीक है जी, तो हमें 92 बाइट्स आगे जाना है फ्रॉम दिस बाइट एड्रेस, ये जो बेस एड्रेस सही है, तो हम लिखेंगे कि हम कहेंगे जी कि बेस एड्रेस, तो पहले हम लिखेंगे बेस एड्रेस फॉर बी, ठीक है, मैंने एक बार हमने ऊपर वैसे किया था लेकिन यहाँ पे करना चाहिए, बेस एड्रेस से कुछ बाइट्स आगे जाए तो ये प्लस का मैंडेटरी है। ठीक है, ये बेस एड्रेस में आगे, अब आगे जो हमने बाइट्स लिखी है हमने कह दिया कि ये एक्स नंबर ऑफ बाइट्स, यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है, उसके अंदर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ बाइट्स हमने आगे जाए। अब ये एक्स कैसे निकलेगा, तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास जो हमने भी निकाली है कि एक्स, अब ये बड़ा सा लिख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई कर सेंड हमने स्टेरिक बनाया, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेरिक, तो हमने कह दीजिए कि एक्स जो है ये क्या है, ये है हमारे पास 23 एलिमेंट्स आगे जाना था, बाकी कैलकुलेशन मैंने ऊपर कर दी थी, ठीक है, 23 और हर एलिमेंट है हमारे पास 4 बाइट्स, ठीक है, तो हमने कह दिया कि इतनी बाइट्स अगर हम आगे चले जाए तो हम उस एड्रेस पे पहुंच जाएंगे विच इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट स्कोर ऑफ 5, यानी कि ये वाला, ये जो एड्रेस नंबर है, दिस एड्रेस नंबर इज what we get from this calculation, ठीक है, बेस एड्रेस प्लस एक्स, ठीक हो गया। तो जो भी नंबर आता है मुझे उससे कंसर्न नहीं है, मुझे कंसर्न इस बात से है कि ये कैलकुलेशन समझ आई सबको कि नहीं। ये 5 कहाँ पे यूज किया, जब हमने रो स्किप करनी थी, 3 कहाँ पे यूज किया, जब हमने कॉलम स्किप करनी थी, तो 5 इंटू 4 प्लस, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से जरा क्लियर करता हूँ थोड़ा सा इरेजर के थ्रू, और मैं एरेज करता हूँ ये जो मैंने निकाला, ठीक है जी, मैं इसको इसलिए एरेज करता हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, दोबारा पेन पकड़ के मैं लिखूंगा यहाँ पे कि मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कि बेस एड्रेस में प्लस मैंने क्या किया, अब मैं अगर ब्रैकेट में खुलासा करके लिखूँ वो ये है कि मैंने कहा जी कि 5 इंटू 4, 5 को मैं कह देता हूँ आई, 5 इज द इंडेक्स आई मल्टीप्लाइड बाय 4 कहाँ से आया था, 4 वाज द साइज ऑफ ith डायमेंशन, आप इसको ये भी कह सकते हैं साइज ऑफ अ रो, ठीक है, तो हर रो का साइज कितना है, इसको मैं कह देता हूँ एस ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद प्लस मैंने क्या किया था, ये जो 3 था ये क्या था, जी यानी कॉलम इंडेक्स, ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला बन गया, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा साइज ऑफ, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने मल्टीप्लाई किया साइज ऑफ ईच एलिमेंट, एस ई लिखा, ठीक है जी, साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें क्या इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं फॉर 2D की जगह 3D, इसको 2D की जगह 3D पे आप लोग कर सकते हैं मैप कहीं से, So ये ब्रैकेट में जी आ जाएगा आई गेस। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जब 3D है तो आई जे और के आ जाएंगे ना, 3 डायमेंशन, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं आई से स्टार्ट करते हैं, आई जे एंड के, आई इंटू एस ऑफ आई प्लस जे इंटू एस ऑफ जे प्लस के, ऐसे ही बनेगा एग्जैक्टली जी, बिल्कुल बेहतरीन उस्मान मलिक, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, ठीक है। और अगर ये 4 डायमेंशन होता तो आई जे के और एल होता तो आई इंटू एस ऑफ आई प्लस जे इंटू एस ऑफ जे प्लस के इंटू एस ऑफ के प्लस आई जे के एल, ठीक है, और ये सारे के ब्रैकेट के बाद एस ऑफ ई वहीं पे रहेगा, साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, साइज ऑफ डाटा टाइप, एस ऑफ ई वहीं पे रहेगा, लेकिन बाकी सारी डायमेंशन अपने अपने साइज से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमें एग्जैक्टली वो एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है जी, तो जनरलाइज हो गया जी।
किसी बच्चे को समझ ना आए। मुझे पता है कि अभी भी मेजोरिटी बच्चे जो हैं वो इस बात पे रिलाई कर रहे हैं कि जब मैं नेक्स्ट टाइम क्विज लूंगा तो हम उस वक्त सोचेंगे। आप अभी सोचते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज घर जाएं, रिवाइज करें, और अगर रिवाइज करने के बाद आपको कन्फ्यूजन नजर आती है तो डेफिनेटली आके मेरे से पूछें या इसको स्टडी करें। ठीक है जी, लेक्चर तो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी ना, तो आप इसको स्टडी करें। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी ट्रांसलेट अवर एड्रेसेस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एड्रेस। ठीक है जी, तो लेट मी रिमूव ऑल द ऑन दिस स्लाइड। ये समझ आ गया, मैं रिमूव कर दूं सबको स्लाइड जैसे उस्मान ने लिखे जी कि उस्मान सॉरी उस्मान उसामा ने लिखा था, बोला सॉरी, अच्छा ठीक है, दानियार अहमद उस्मान ने अभी आपके कमेंट्स ऊपर जो लिखा है, देखिए है क्या, अगर 3D एरे होगी ना तो आई है उसकी जो बता रहे आई जो है, आई इज टेलिंग के मेरे पास मैंने किस मैट्रिक्स पे जाना है। ठीक है, जे जो है वो बता रहा है मैट्रिक्स की किस रो पे जाना है, और के जो है वो बता रहा है किस रो एलिमेंट पे जाना है। 3D एरे ऐसी होती है ना। ठीक है, तो अगर 3D एरे आई बता रहा है कि किस मैट्रिक्स पे जाना है, जे बता रहा है कि मैट्रिक्स में किस रो पे जाना है, और के बता रहा है कि उसके किस एलिमेंट पे जाना है। मैं करूँगा क्या, मैं कहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स स्किप करना है एक मैट्रिक्स, तो लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल जो बनेगा वो बनेगा स्कोर ऑफ मे बी 1 ऑफ 2 ऑफ 3। ठीक है, आई होगा 1, जी होगा 2 और के होगा 3। मैं कहूँगा अच्छा मुझे 1 मैट्रिक्स स्किप करना, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय जो भी मैट्रिक्स का साइज है, मैट्रिक्स का साइज है फॉर एग्जांपल 5x4, तो हम कहेंगे 1 इंटू 5x4 प्लस जे, जे बता रहा है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज स्किप करनी है, तो इनकी 2 है, जे की वैल्यू हमने 2 रखी थी, तो 2 इंटू अगर 5x4 मैट्रिक्स का है तो रो का साइज है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस के जो है, के इज द वैल्यू के उस रो में किस एलिमेंट पे जाना। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू होगी 3, जो मैंने बताई थी कि 1 2 3 अगर पास किया गया स्कोर ऑफ 1 2 3, तो के की वैल्यू है 3, तो उसके बाद 3 लिखा होगा और वो इस ब्रैकेट के अंदर ये सारा एक्सप्रेशन, उसके बाद नीचे लिखा होगा मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ द। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी वुड ट्रांसलेट द एड्रेस ऑफ अ 3D एरे। इसी तरह 4D एरे के लिए भी हमें आई जो है वो फोर्थ डायमेंशन है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि 3D जो क्यूब है वो कितने साइज का है, प्लस जे के साथ लिखा होगा कि 2D मैट्रिक्स जो है वो कितने साइज का होगा, प्लस के साथ लिखा होगा कि 1D रो जो है वो कितने साइज की है, प्लस एल के साथ लिखा होगा, एल लास्ट इंडेक्स होगा, ये सारा एक्सप्रेशन ब्रैकेट में होगा, और ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइज ऑफ द एलिमेंट्स। तो अगर डबल है तो डबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल के साइज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी ट्रांसलेट। तो अब ये काफ़ी इजी हो गया ट्रांसलेशन। ठीक है, अब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गो बैक टू द फाइनल एग्जाम ऑफ योर कोर्स, और उसका वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको ज़रा खुद से दोबारा से ट्राई करें, मतलब वो आपको क्लियरली समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा टाइम गुजर गया तो दोबारा से रिपीट करने हैं वो आपको। अब आप उसको एक तरीके और भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक इसी तरह 3D या 4D एरे बनाएं, कोड लिखें C++ में कंपाइलर के ऊपर, उसको कंपाइल करें और करें ये कि उसमें लूप लगाएं, मतलब अगर 2D एरे है तो नेस्टेड लूप लगाएं, अगर 3D एरे है तो 3D नेस्टेड लूप लगाएं, और आप हर इंडेक्स पे जाएं और उसका एड्रेस प्रिंट करें, और आपने प्रोसेस करना है रो बाय रो। ठीक है, 0 1 2 करके। तो अगर आप इस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अगर इंटीजर वैल्यू है तो आपका हर नेक्स्ट जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 4 बाइट्स अवे होगी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी 2D 3D या 4D या 5D एरेज जितने भी डायमेंशन की एरे, इवेंचुअली वो रो बाय रो एक 1D एरे के तौर पे रैम में पड़ी। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपने घर जाके लास्ट में करनी है। तो दो चीजें हैं, फर्स्ट इज कि आप अपने ऊप का फाइनल एग्जाम का पहला क्वेश्चन खुद बैठ के किसी भी नोट्स को देखे बगैर अभी अटेम्प्ट करेंगे, एंड सेकेंड इज कि आप वही उस चीज का कोड लिखें कंपाइलर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल 6D के लिए ना लिखें, 2D या 3D या 4D के लिए लिखें, से ऊपर ना जाना फिर समझ ही नहीं आएगा। उसमें आप कुछ आउटपुट ऐसे जनरेट करेंगे, जब एक रो कंप्लीट हो तो आप कुछ मैसेज देख लेंगे, मैसेज प्रिंट करें कि रो 1 कंप्लीटेड। उसके बाद नेक्स्ट रो पे जाएं और उसके पहले इंडेक्स का एड्रेस, दूसरे का एड्रेस, तीसरे का एड्रेस,
चौथे का एड्रेस एम्परसेंड ऑपरेटर लगा के ना, ये सारे एड्रेसेस प्रिंट करते हैं। आप देखेंगे कि फर्स्ट रो के बाद जब सेकंड रो स्टार्ट होगी तो लास्ट एलिमेंट का जो एड्रेस आया था और इसके फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस आया उनमें वही डिफरेंस है जो कि पहले दो एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया जगह कि बाइंडिंग। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से हम अब आगे चलते हैं, तकरीबन ये कंटेंट कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ है नहीं किया। अब आ गया कि मल्टी डायमेंशनल एरेज जो हैं वो मल्टीपल वेज में रैम में पढ़ी हो सकती है। एक तरीका था जैसे हमने पढ़ा है रो बाय रो, दूसरा होता है कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम बाय कॉलम भी पढ़ा हो सकता है, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था। तो कॉलम बाय कॉलम जब पढ़ा होगा तो क्या डिफरेंस होगा, एक्चुअली ये बस डिपिक्शन है इसकी, सिंपल डिपिक्शन है। ये राइट हैंड साइड पे टेबल बना हुआ है, ये वाला टेबल, हाँ जी आपकी स्लाइड पे अब है ये जो टेबल बना हुआ है राइट हैंड साइड पे, ये जो राइट हैंड साइड पे टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो ये 3 रोज हैं। तो अगर आप इंडेक्स देखें 1 1 1 2 1 3 1 4, तो रो का इंडेक्स वही चल रहा है। तो ये जो डिपिक्शन है एक्चुअली, ये जो वर्टिकल में की हुई है, ये बेसिकली हमारे पास डिपिक्शन है रैम की। तो रैम के जो एड्रेसेस हैं वो इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं इस डायरेक्शन। ठीक है जी। तो पहला एलिमेंट पहली रो का पहला, दूसरा पहली रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट जो है वो पहली रो का तीसरा। तो डाटा की पहली रो के 4 एलिमेंट है, फिर दूसरी रो के 4 एलिमेंट है, फिर तीसरी रो के 4 एलिमेंट। अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसका अल्टरनेट अप्रोच भी होती है कि जिसमें अगर आप देखें यहाँ पे अब ये जो कॉलम है ये कॉमन है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड देन 4 4 4। ठीक है जी। तो ये जो कॉलम हमारे पास आ रहे हैं, ये अब अगर आप देखें तो रैम के पहले एड्रेस पे पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरे एड्रेस पे दूसरे कॉलम का, अ, दूसरी रो के पहला कॉलम, और तीसरे एलिमेंट पे तीसरी रो का पहला कॉलम। तो अगर आप डाटा बनाते हैं ना इस तरीके से, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेबल है पूरी की बात करें। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 2 रोज हैं और फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स हैं, तो पहले डाटा जो प्रिंट हो रहा था वो प्रिंट हो रहा था पहली रो पूरी, फिर दूसरी रो पे वो पूरी, तीसरी रो पे वो पूरी, चौथी रो पे वो पूरी। तो ये जिगजैग इस तरह से बन रहा था। लेकिन अब जब हम कॉलम की बात करें तो पहले इस तरीके से एलिमेंट सारे प्रोसेस हुए, फिर दूसरी पे चले, फिर छह एलिमेंट प्रोसेस हुए, फिर तीसरे पे चले, एलिमेंट ऐसे प्रोसेस हुए। तो ये वो साइन वेव सी जैसे बनती है ना। तो बेसिकली एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग कॉलम वाइज हो रही है, पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। इस तरीके से प्रोसेसिंग की बात नहीं भी करें, बात ही करूँ कि रैम में कैसे स्टोर है। तो ये सारी वैल्यूज रैम में इस तरीके से स्टोर की जा सकती हैं, मे भी किसी लैंग्वेज में ऐसे की भी जाती है। अदर वे अगर इसी कॉन्सेप्ट को आप देखना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे भी देख सकते हैं कि शायद हमने ऊप में भी डिस्कस किया था, पीएफ में भी डिस्कस किया था, कि कंपाइलर अपने तौर पे ऑप्टिमाइजेशन भी डालता है कोड के अंदर। तो कंपाइलर आपके कोड का पूरा एक कोड ग्राफ बनाता है। ठीक है, एक आप देखेंगे अभी आगे जाके जब हम ग्राफ्स को पढ़ना शुरू करेंगे इस कोर्स की एंड पे, तो आप देखेंगे कि ग्राफ की बहुत सी यूटिलिटीज हैं, जिनमें से एक यूटिलिटी ये है कि आप अपने कोड को एनालाइज कर सकते हैं कि अगर आप हर स्टेटमेंट को ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं तो कोड के ग्राफ बनते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर जब आप कोड लिख के कंपाइल करते हैं तो उसके ग्राफ बनाते हैं अपने पास, और उसके बाद चेक करता है कि अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई एक चेंज करूं तो क्या ग्राफ में चेंज तो नहीं आ जाती। तो यूजुअली अगर एक ही आउटपुट आ रही हो तो ग्राफ में चेंज नहीं आती। तो कंपाइलर क्या करेगा कि कंपाइलर यहाँ पे देखेगा कि अब मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ कि ये वाला सब थियोरेटिकली कैसे यूज होता है, प्रैक्टिकली तो नहीं, मतलब फिजिकली तो नहीं, लेकिन थियोरेटिकली। कि कंपाइलर देखता है कि आपके रैम में तो डाटा ये रो मेजर ऑर्डर में स्टोर है। आपने फॉर एग्जांपल लूप ऐसे लगा दी किसी एल्गोरिथम की कि आप उसमें डाटा इस तरह से रीड करेंगे, पहले पहले कॉलम की सारी वैल्यूज रीड करते हैं, फिर दूसरे कॉलम की वैल्यूज रीड करते हैं, फिर तीसरे कॉलम की सारी वैल्यूज रीड करते हैं। तो कंपाइलर ये करेगा कि यार इस तरीके से तो मेरा जो हार्ड डिस्क के रीड हेड है वो बार बार दाएं बाएं घूमते ही रह जाएगा, ये कब पहुंचेगा उस स्पेसिफिक लोकेशन पे, मतलब ये बार बार टू एंड फ्रो मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी इसकी ना, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। हार्ड डिस्क की सारा जो एक्सेस टाइम है वो उसके हेड को मूव करने के टाइम पे लगता है। ठीक है, हम इस डिटेल में जाएंगे बाद में मजीद भी, बल्कि कि हार्ड डिस्क कैसे इस तरह से मूव होती है। लेकिन एनी केस यहाँ पे हम ये बात करें कि हार्ड डिस्क को अगर कॉलम मेजर ऑर्डर में डाटा रीड करना है, लेकिन हार्ड डिस्क पे जो डाटा स्टोर्ड है वो रो मेजर ऑर्डर में, तो कंपाइलर सिंपल जो नेस्टेड लूप है जिसमें आई इंडेक्स बाहर रो के लिए है, जे इंडेक्स अंदर कॉलम के लिए। आपने लूप उल्टी लगाई तो आपने जे कॉलम बाहर रख दिया, जे इंडेक्स बाहर रख दिया, आई इंडेक्स नेस्टेड लूप के अंदर लिख। तो कंपाइलर देखेगा कि अच्छा अगर मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ और अगर मैं इस लूप को रिवर्स कर दूं कि आई वाली लूप बाहर लगा दूं, जे वाली को अंदर कर दूं, नेस्टेड का जो नेस्टेड लूप लगी थी उसके ऑर्डर को उल्टा कर दूं,
जे क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस जे कर, तो क्या आउटपुट पे चेंज आएगी कि नहीं? तो वो दोनों का ग्राफ बना के देखेगा और कंपेयर करेगा कि ये क्या सिमिलर ग्राफ बन रहे हैं कि नहीं। अगर वो सिमिलर ग्राफ बन रहा है तो कंपाइलर आराम से बगैर किसी डर के इनको स्वैप कर देगा, यानी कि जो आपने कोड लिखा था कॉलम मेजर ऑर्डर में रीड करने का, कंपाइलर उसको खुद से रो मेजर ऑर्डर में रीडिंग में डाल देगा, ताकि आपकी हार्डवेयर को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। तो कॉलम मेजर ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है उसको रो मेजर ऑर्डर में कन्वर्ट करना, या कभी कभी रो मेजर ऑर्डर को कॉलम मेजर ऑर्डर में कन्वर्ट करना, ये कभी कभी थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ठीक है जी, इस पर मजीद से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो लेकिन स्टिल यू शुड नो के रैम में स्टोरेज की चीज़ हार्ड एंड फास्ट नहीं। आप चाहें कोई लैंग्वेज ऐसी बना सकते हैं जो कि इस तरीके से प्रोसेस कर। करना क्या, लैंग्वेज ने डिक्लेरेशन की, आपने इसको उठा के स्टोरेज में डालना है। ठीक है, तो वो आपका अपना काम है, प्रोग्रामर इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन वे ऑफ अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द एरेज। ठीक है जी, तो here the first lecture is complete. If you have any questions, you may ask. We still have around 20 minutes, or maybe 10 minutes, 10 to 15 minutes. I'll just touch the idea of complexity theory. So if you have any questions from this multi-dimensional arrays concept, you can ask. Otherwise, we'll just move on to the next lecture.